Hello students, how are you all? I am Meeta Singh, your science teacher, welcomes you in the today's video of science of chapter 14. Okay, chapter 14 we have started in the last video, last live class, but in the video I am going to start today water. First you have given about the water. This is very simple chapter about the water. You have given sources of water. What can be the sources of water? Sources of water: fresh water, underground water. Then sources of water you have given three types like rain water, river and lake water and sea water. These are sources of water. Then surface water, जो अर्थ के ऊपर जो पानी हमें नजर आता है that is surface water, और जो अर्थ के अंदर होता है that is underground water, right? Then on the next page you have given about the well water, spring water. Well water आप जानते हो कुएं, जो पहले कुछ टाइम पहले तक यही प्रोसेस होता था कि कुएं खोदे जाते थे, जमीन के अंदर कुएं डग किए जाते थे वेल को, और उनसे पानी निकाला जाता था. बट नाउ अ डेज वी हैव बोरिंग. उसी का जो कंसेप्ट है वो किस में चेंज हो गया है? वो बोरिंग में चेंज हो गया है. अब क्या होती है हमारे पास? बोरिंग होती है. तो उन बोरिंग से भी वही कंसेप्ट है, पानी आता है. नेक्स्ट व्हाट इज स्प्रिंग वाटर? कई बार आप देखते हो जमीन के अंदर से अपने आप से कहीं से फोर्स लगकर और पानी बाहर आने लगता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग वाटर. वो एक जो फोर्स लग के पानी अपने आप से किसी भी प्लेस से बाहर आने लगता है, दैट इज स्प्रिंग वाटर. देन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. What is the importance of water? We cannot imagine a single task in our life without water. In the household, survival of living organism सबसे बड़ा है कि कोई भी living organism बिना पानी के survive नहीं कर सकता. Then agriculture, industrialization and power generations. Then household use and some other use. Some other use में क्या use हो सकते हैं? Like we get seed and salt from seas and oceans. मरीन लाइफ, जो हमारी पूरी वाटर एनिमल्स की जो लाइफ है, सी फूड जो हमारा है वो पूरा पानी पे सर्वाइव करता है. तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर एक्सप्लेनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. देन स्टेट्स ऑफ वाटर. वी नो दैट स्टेट्स ऑफ वाटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर इज द substance that is present in the all three forms, solid, liquid and gas. Solid, when it is in ice form, that it is in solid. When it is in a water form, that it is in liquid, and when we boil it, then it turns into the gaseous form, right? You have already studied in the last previous classes about the states of matter, where there we read about the water, all three forms, right? Solid, liquid and gas, and these three forms are related to heating and cooling. When we heat or cool, then it changes the state. And the process like melting, freezing and evaporation and condensation are the process that change the forms of water. When like melting, if you melt the ice, then it changes into from solid to liquid. When you freeze the water, then it changes from liquid to solid. When we boil the water, then it changes from liquid to gas. When we cool the gas, then it changes from gases to liquid, that is condensation. So you have given all these processes also to explain the forms of water like solid, liquid and gas. After that you have given about the water cycle. What is water cycle? Water cycle is a from the all water bodies, natural water bodies, water evaporate from with the sunlight. जितना तेज सनलाइट होता है उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, फास्टर इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन से क्या होता है? वाटर बॉडी से वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाता है. एंड बिकॉज लाइट हो जाती है पूरी, लाइट गैस और लाइट एयर राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जाकर जब एक लिमिट के बाद वो ठंडा होने लगती है, ठंडा होती है तो वहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गैस किस में कन्वर्ट होने लग जाती है? वाटर में कन्वर्ट होने लग जाती है. तो कंडेंसेशन से ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, पानी की बूंदें, और वो पानी की बूंदें इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? क्लाउड बनाती हैं. जब वो क्लाउड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर स्नोफॉल होती है जमीन अर्थ पर, और वही जो क्लाउड्स हैं वो क्या करते हैं? रेन करते हैं, बारिश करते हैं. तो दैट प्रोसेस, रेन, हेल और स्नो, किसी भी फॉर्म में अगर वही इवेपोरेट हुआ वाटर अर्थ पर वापस आ रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. वो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन कहलाता है. After that, you have given some terms related to water like drought, famine, flood. These all the things occurs because of water. अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है. अब
पानी की कमी होगी तो डेफिनेटली वो क्रॉप्स को इफेक्ट करेगी। अगर वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी तो वाटर और फूड दोनों की जो वहाँ पर स्कैर्सिटी हो जाएगी, एंड दैट कॉल्ड द कंडीशन ऑफ फेमाइन। और वो कौन सी कंडीशन बन जाती है, वो फेमाइन की कंडीशन बन जाती है। आफ्टर दैट फ्लड, अगर पानी ना होने से, रेन ना होने से प्रॉब्लम होती है तो रेन बहुत ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, वहाँ पर फ्लड आ जाती है। और उस जब फ्लड आती है तो गंदा पानी इकट्ठा होने से बहुत सारी बीमारियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू वाटर। देन वी हैव गिवन नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमारे जो एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारे एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है 50 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, सैनिटेशन, कुकिंग, ऑल द थिंग्स मिलाकर। अब हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन वाटर सोर्सेज तो उतने ही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन स्टार्ट करना चाहिए कि किस तरह से हम वाटर को सेव कर सकते हैं, उसके जुडिशियस यूज़ को बढ़ाकर उसे सेव कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें थोड़ा पानी यूज़ करने की ज़रूरत है हम वहाँ थोड़ा ही करें, कैसे वाटर को रिसाइकिल करें। These all the things you have to maintain. What is water? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम देखते हैं रेन जब होती है तो बहुत सारा पानी तो ज़मीन के अंदर चला जाता है, लेकिन बहुत सारा पानी ड्रेन्स में मतलब नालियों में चला जाता है, ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो उस पानी को हम इकट्ठा करके और बाद में इरिगेशन में या अपने किसी और कामों में यूज़ ले सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप अपनी छत पर उस पानी को इस तरह से सारी पूरी छत को पैक कर दें कि पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, वहाँ पर से एक पाइप को कनेक्ट करके एक टैंक से कनेक्ट कर सकते हैं कि पानी उस टैंक में इकट्ठा हो जाए, और उस पानी को आप अपनी वाटर प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कामों में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वो यूज़ आ सके। ठीक है, सफाई करने के लिए, बाहर धुलाई वगैरह करने के लिए उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। After that, you have given some points regarding avoid water wastage. Close taps when not in use. Check and fix leaky taps and pipes. Do not leave the tap running water while brushing your teeth. Avoiding long baths. Wash the car using a bucket for water and a water rag instead of the hose pipe. Wash the car using a bucket of water plants early in the morning. So these are the complete points of the chapter. In the chapter 14 regarding water. Now today I will send you the PDF of bookwork and copywork, so you will be able to complete your bookwork and copywork. You can ask your doubts in the tomorrow's live class, or you can post your doubts also or for the tomorrow, and hopefully tomorrow we will start the chapter 15. Okay, thank you. Read the chapter carefully. Thank you.